Hello students, welcome to the next lecture on the partial differential equation. Today I will explain you one of the most important lecture of the partial differential is Cauchy problem. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel. Why I call as the coach, why I call as the most important lectures? Can you tell me can you tell me the answer of this problem in a 15-second time periods? आपने बिल्कुल सही सुना 15-second time period. Can you solve the problem in a 15-second time periods? Because you can see the given differential equation is partial. Xp plus yq is equal to twice of u. Now once is a partial differential equation, can you get the answer in the 15-second time period? Look at the one more example. Again, can you get the answer in a 15-second time period? Fine. Again, you can see I can write as 2p plus 3q is 5. Fine. How you can solve all these questions in the 15-second time periods? First of all, you can see that the equations are my first order linear partial differential equation. और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक फुल प्लेलिस्ट है आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन where we have discussed the integral surface, Lagrange equations, formulation of the partial differential equations, first order partial differential and then many more lectures. Fine. आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, आपका CSR नेट और गेट एग्जामिनेशन 15 सेकंड में क्लियर हो जाएगा. फाइन. अब मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ, थ्योरी बताता हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ कि इन दोनों क्वेश्चन को और इसके सिमिलर जैसे क्वेश्चन को कैसे आप 15 सेकंड में सॉल्व करोगे. फाइन. तो इसके लिए मैं आज का लेक्चर आपके लिए अपलोड कर रहा हूं. यू कैन वॉच दिस लेक्चर टिल द एंड और आफ्टर वॉचिंग द वीडियो कम बैक टू दिस टू क्वेश्चंस और इसके आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में सेंड करिए. फाइन. अगर तो आपने आंसर सही से सेंड कर दिए देन मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ओनली एंड ओनली ऑन दी CSR नेट एंड गेट क्वेश्चन के ऊपर पार्शियल डिफरेंशियल ऊपर अपलोड करूंगा. दैट्स माय प्रॉमिस. बट अगर आपने आंसर नहीं दिया कमेंट बॉक्स में देन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी एज वेल. First of all, what is the Cauchy problem? Fine, ध्यान से सुनिए लेक्चर भी. Whenever you have first order linear partial differential equation along with the initial curve gamma. Fine, ये कर्व कोई भी हो सकती है, सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, एनी वन. The Cauchy problem is whenever you have the first order partial differential equations plus any initial curve. Find initial curve in the form of the parametrics or as the initial value problem. And that problem is called as the Cauchy problem. और पर्पस क्या है Cauchy problem का? Cauchy problem consists of finding the integral surface on which the given curve lies. And integral surface हमने पहले बता चुका हूं मैं आपको. How you can find the integral surface? You can see the 10 plus numerical example of the integral surface. जो भी आपके पास इंटेग्रल सरफेस आएगा उसके ऊपर अगर उस इंटेग्रल सरफेस के ऊपर अगर तो ये लाइन और ये कर्व सेटिस्फाइड होती हुई दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज द Cauchy प्रॉब्लम. फाइन. बट द क्वेश्चन राइजेस इज ऐसे तो बहुत सारे सरफेस मिलेंगे देन हाउ मेनी सच सॉल्यूशंस एग्जिस्ट. फाइन. मान लो आपने एक सरफेस बना दिया, दिस इज माय सरफेस. तो इस सरफेस के ऊपर एक कर्व ले लिया आपने. फाइन. तो कितने कर्व इसमें से पास होंगे? हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर एग्जिस्ट? वेदर दे आर यूनिक, yes or no? If it is yes, then the next question arises is how we can find such solution. और अगर ये यूनिक नहीं है then our target is under what conditions we can find these solutions. Solution means whether they are no solution or infinitely many solutions. Fine. Then our target is to identify the number of the solution in terms of unique, no solutions and the infinitely many solution. कंडीशन क्या मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं. एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर और क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए और साथ में एक इनिशियल कर्व होनी चाहिए. फाइन. देन यू कैन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द, इसको आप इससे भी कंपेयर कर सकते हो, P इंटू कैपिटल P प्लस Q इंटू कैपिटल Q विच इज इक्वल टू R. Then unique solution किसे कहा जाएगा? Whenever you can find the value of the P on the given curve x naught, y naught, z naught divided by the derivative of the initial point.
if it is not equal to the value of the q at the initial point x naught, y naught, z naught divided by y naught divided by t. बिकॉज अगर आपका पैरामीट्रिक कर्व t में है तो यू कैन राइट एज ए t, अगर s में होगा यू कैन राइट एज ए s. So whenever its condition is unique, that means this condition hold. On the other hand, अगर तो ये condition आपके पास पहले दो equal है but right hand side is not equal, then you can say as a no solution. When all are equal, then we call as a infinitely many solutions. Make sure students R must be on the right hand side. Fine. अगर ये right hand side पे नहीं है तो पहले आप उसको right hand side पे लेके जाइए. क्लियर? और कई बार कई बुक्स और कोई ऑथर्स और कई एग्जामिनेशन इसको इस फॉर्म में भी लिख देते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस क्यू डेल यू बाय डेल वाई विच इज आर. तो यहाँ पे आपने डिपेंडेंट वेरिएबल यू लिख लिया, फाइन, तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट आपका यू हो जाएगा. फाइन, तो वो नोटेशन आपके पास कोई भी नोटेशन ले सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, फाइन, मैं अगर इन दोनों का रेशियो ले लूं, इसको मैं डिटर्मिनेंट में लिख दूं, फाइन, यू कैन ऑलवेज कंप्यूट. अगर तो आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ गई देन वी कॉल एज द यूनिक सॉल्यूशन, और अगर ये वैल्यू जीरो आ गई देन वी कांट से एनीथिंग. कांट से एनीथिंग मींस इट मे बी द नो सॉल्यूशन और इट मे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. समझ में आ गई? सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है और मैं आपको देखो एग्जांपल से ढेर लगा देता हूं आपके लिए. तो पहली एग्जांपल यू के साथ लिखी हुई है, दैट मींस डेल यू बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू 2. क्लियर? तो पहले आप इस इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए, P इंटू कैपिटल P प्लस Q इंटू कैपिटल Q विच इज इक्वल टू R. कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ द P? P क्या है? कोफिशिएंट ऑफ द डेल यू बाय डेल एक्स विच इज माई 1. व्हाट इज माई कैपिटल Q? कोफिशिएंट ऑफ द Q, दैट्स a -1. R is the value of the right hand side, that comes to be 2. फाइन. और कर्व क्या दे रखी है आपको? तो इनिशियल पॉइंट x नॉट इन द पॉइंट ऑफ t, दैट इज x कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट का पॉइंट इनिशियल आपके पास है, दैट इज ऑफ t, एंड द z कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे z को आप u भी लिख सकते हो आप, फाइन, बिकॉज द इनिशियल पॉइंट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ u. देन योर टारगेट इज टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ डेल्टा. फाइन, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द p. यहाँ तो कांस्टेंट ही है तो 1 ही आ गया, क्यू की वैल्यू कांस्टेंट है -1 हो गया. डेरिवेटिव ऑफ द x नॉट 2, डेरिवेटिव ऑफ द t 1, कितना आ जाएगा? डिटर्मिनेंट 3 विच इज नॉन जीरो. अगर ये नॉन जीरो है दैट मींस दिस कॉची प्रॉब्लम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन. क्लियर? और इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन बाय यूजिंग द लैग्रेंज इक्वेशंस. फाइन, और वो आप इक्वेशन जैसे इस प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया है, यू कैन फाइंड. Look at the second example. Now this is in terms of the z, del z by del x minus del z by del y which is equal to 2. So you can compare them, P into Q. Fine. So what is the capital P? Capital P is 1, Q will be -1, R will be 2. Clear? And this is my initial curve. So x naught of the t, that is the x coordinate. X coordinate is my t. Y naught, initial coordinate of the y is again t, and the z coordinate is my, so that is the curve. This is my given curve gamma. Fine. Now you can find the value of the determinants. Function, that is determinant of p is a 1, q is my -1, derivative of the t, derivative of the t. So the determinant will be 1 plus 1 is 2, which is my non-zero. Once it's a non-zero, then you can say it has a unique solution. Look at the next one. Consider the Cauchy problem. So सबसे पहले you can compare the partial differential equation with P into Q. P into P, Q into Q is equal to R. I can write the given partial differential equation is del z by del x plus 3 del z by del y which is equal to 5, and we know what is the del z by del x, that's my P, Q is 5. So you can compare, capital P is my 2, capital Q is my 3, capital R is my 5. Fine. एक ही बच्चों याद रखना, अगर ये कुछ इक्वेशन इस तरह से दी होती तो पहले आप इसको राइट साइड पे लेके जाओगे आप,
It must be on the right hand side. Fine. Now you can define the curve. Fine. अब curve given नहीं है, but it is lies on here. Fine. So I can take initial value of the x is my t. Fine. तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? You can find the value of the y. It is 3t divided by 2, or it's in the terms of the z. So that's basically my z. Fine. तो z of naught कितना है वो, that is given to you as a 1. Fine. So that is my initial curve. Check, calculate the value of the determinants. So you can see that 2, 3, derivative is 1, derivative is 3 by 2, determinant is 0. So once the determinant is 0, that means we can't say anything about the solution. जब भी आपके पास यूनिक सोल्यूशन नहीं आया, then you can always try to compute these values. तो निकालते हैं, p की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2 divided by derivative 1, which is equal to q की वैल्यू कितनी है? 3 divided by derivative 3 by 2. r is my 5 divided by the derivative 0. So clearly say ये दोनों तो इक्वल आ गए आपके, but they are not equal because 2 is equal to 2 which is not equal to, अगर ये लास्ट में infinity है, what does it means? That means the given solution has no solution. So this means the given partial differential equation has no solution. तो चाहे आप उसे Lagrange से सॉल्व करिए, चाहे चारपिट से सॉल्व करिए, किसी से भी करिए, you will get the no solution. चलिए look at the next one. Partial differential equation is given to you. You can compare them. P into P, Q into Q is equal to R. What is my capital P? Coefficient of the small p. Q, R will be 0. Fine. Now, can you define the curve? Fine. Your target is to define the x naught, y naught, and the z naught. Z is already given to you in the statement. Fine. Now how you can define the t? So choice on you. Either I can take x is my t, then y will be 1 minus t square, or you can take an as, because it's a circle, so the better I can take an as a polar coordinate cos of t and then sine of t. Choice आपकी है, but because it's a polar form is quite easy, I can use the cos t and the sine t is my parametric form. Then you can compute the value of the delta, that is a p. फाइन. इस p के अंदर क्या है? y. तो y की इनिशियल वैल्यू फिल करनी है आपको, साइन ऑफ t. q कितना आपका? माइनस ऑफ x. x की वैल्यू कितनी है आपकी? इनिशियल कर्व कोस, सॉरी इट्स अ माइनस ऑफ कोस. फाइन. एंड देन इसका डेरिवेटिव करिए, कोस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन, साइन का डेरिवेटिव कोस. एंड इफ यू सॉल्व देम, इट इज अ साइन into t into cos of t minus minus plus and minus of sin t into cos of t, which is my 0. Fine. अगर ये 0 है, then we can't say anything about the solution. तो ये थोड़ा सा गलत होगा, that will be my 0. Fine. Fine. So we can't say anything about the solution. अगर कुछ नहीं कह सकते, then we have to compute the values. तो फिल करते हैं वैल्यू. p की वैल्यू कितनी है? y की इनिशियल कर्व पे ऊपर वैल्यू कितनी है? साइन ऑफ t डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ द cos derivative is minus of sine. Q is my minus of x. Minus of x means minus of sine t divided by the derivative of the y, which is equal to r. R is my 0 divided by derivative of 1 is 0. You can see that 0 by 0 is my undefined. Fine. तो जब 0 by 0 undefined है, that means we can never make any conclusion from this case. फाइन. पिछली एग्जांपल में तो आपको नो सॉल्यूशन मिल गया था, बट जब भी आपको पास 0 by 0 फॉर्म आ जाए, दैट इज नॉट डिफाइंड, तो फिर आपको इसका सॉल्यूशन निकालना होगा. वो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग द लैग्रेंज इक्वेशंस. क्या होती है? dx ओवर p dy ओवर q विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको z के केस में है तो dz ओवर r. नाउ यू कैन सॉल्व देम. क्लियरली से फ्रॉम द थर्ड फ्रैक्शन से क्या बन गया आपका? dz is 0, that implies z is equal to c1. Now we can use the first
एंड द सेकेंड फ्रैक्शन फाइन, तो कितना आ गया ये माइनस एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू वाई डी वाई. Then you can integrate on the both side, which implies minus x square by 2 which is y square by 2 plus c by 2 ले लेते हैं. तो आपका सेकंड कांस्टेंट c2 कितना हो गया आपके पास y square plus x. Fine. Now you have the two constants x square plus y square and so therefore your solution will be, किसी एक को लिख सकते हैं ना, so z फर्स्ट वाली को लिख दिया, phi of सेकेंड वन. फाइन. तो वो मैं वैसे लिख रहा हूं जैसे मैंने इन टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में सिखाया आपको. क्लियर. नाउ इस कर्व के अंदर अब आपको चेक करना है क्या ये यूनिक तो आपने पहले बता दिया ना, नो यूनिक सॉल्यूशन. क्लियर. तो आपका ये इधर इज नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. वो कैसे पता लगेगा? योर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फाई. फाई इज आर्बिट्री फंक्शन. अब ये फंक्शन कैसा है? क्या ये एक्सपोनेंशियल है, कोसाइन है, साइन है, लॉगरिथम है, क्या है? अगर तो आपको यूनिक फाई मिल गया then you will get a solution, otherwise not. Now the initial curve is fine. ये वैल्यू आपकी कर्व के अंदर पास कर दो. फाइन. द कर्व इज पासिंग तो कोस साइन एंड, तो इसकी वैल्यू फिल कर दो इसके अंदर. z इज माई 1 फाई ऑफ कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी. फाइन. तो क्या बन गया आपका मतलब फाई कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज 1 विच इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल टी. ऐसे कितने फंक्शन होंगे जिसकी वैल्यू फॉर ऑल टी पे फाई ऑफ 1 is 1? डेफिनेटली इट हैज इनफाइनाइटली मेनी फंक्शंस. फाइन. so that means अगर ये phi has infinitely many function, therefore the given partial differential equation has infinitely many solutions. चलिए next one, consider the Cauchy problem, find the number of the solutions passing through the given curve. अब इसमें S में दे दिया है. Fine. You can compare them. Capital P is my 1, capital Q is my 0, capital R is my Z. Initial curve x नोट. अब ये इस केस में S में है. फाइन. तो ये वैल्यू आपकी क्या है? इसको S ले लेते हैं. y नोट इज 0 और z नोट इज माई साइन ऑफ S. ऑल्दो यहां भी लिखा हुआ है, अगर ये मान लो यहां पे ना लिखा होता तो यू कैन इजिली फाइंड फ्रॉम दिस साइड. फाइन. सबसे पहले ट्रायंगल निकाल लेते हैं, वैल्यू फिल करते हैं. 1 क्यू की वैल्यू 0, इसका डेरिवेटिव 1, 0 डेरिवेटिव 0 विच इज माई 0. तो जैसे 0 आ गया वी कांट से एनीथिंग अबाउट दिस सॉल्यूशन. फाइन. नाउ यू कैन कंप्यूट दिस वैल्यूज. सो दैट इज अ 1 डेरिवेटिव. नाउ इंस्टेड ऑफ द t इज माई s. फाइन. यहां पे भी पीछे भी s के साथ, हाँ बिल्कुल. तो s के साथ करो डेरिवेटिव 1, q is my 0, डेरिवेटिव इज 0, z की वैल्यू कितनी है? साइन ऑफ s, डेरिवेटिव बाय. फाइन. बट यू कैन सी इसे 0 by 0 फॉर्म अपीयर, हैंस नो कंक्लूजन ड्रॉन. इसका मतलब आपको लैग्रेंज इक्वेशन से स्टार्ट करना होगा. तो फ्रॉम द सेकेंड एक्सप्रेशन से क्या मिल गया आपके पास? dy के नीचे 0 है ना आपके पास. सो सेकेंड फ्रैक्शन से क्या मिला आपको? dy विल बी 0. दैट इंप्लाइज y is equal to c1. Look at the first and the last. dx over 1, dz over z. You can integrate them. It will be x is equal to log of z plus constant, or you can say x minus log of z is equal to constant. Based on the value of the x and y, your solution will be x minus log of z is phi of. ट्राई करना बच्चे हमेशा इस फाई के अंदर जेड वाली टर्म ना लिखो. फाइन. जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको पहले लिखो. फाइन. इसमें मेरे पास जेड इसमें था ना, तो इसको मैंने पहले लिख लिया. फाइन. लिखना वो भी गलत नहीं है, बट कैलकुलेशन को आसान करने के लिए. अब ये इनिशियल कर्व जो आपके पास है इसके अंदर पास कर दो, तो क्या बन जाएगा आपके पास? इनिशियल कर्व जैसे पास करोगे, एक्स की वैल्यू s, जेड की वैल्यू साइन ऑफ s और y की वैल्यू 0. फाइन. तो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ द s? तो क्या आ जाएगा ये? s माइनस फाई ऑफ 0 विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन s. फाइन. तो यहां से साइन s की वैल्यू कितनी आ गई? साइन ऑफ s विल बी e रेज़्ड टू पावर s, e रेज़्ड टू पावर माइनस फाई ऑफ 0. तो क्लियरली से विच इज माई नॉट पॉसिबल.
वाई? बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास है साइन फंक्शन और राइट हैंड साइड पे एक्सपोनेंशियल के साथ एक टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, यू कैन नेवर कंपेयर देम। इसके अंदर तो आपके पास कैसी टर्म्स आएंगी, s माइनस एस क्यू बाई 3, लेकिन इसमें तो सारी आएंगी ना, दैट मीन्स दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर इसका मतलब पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स नो सच फाई एग्जिस्ट, देयरफॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। चलिए look at the next one. Again, del u by del x is my p, is my q, which is my u. Capital P1, capital Q1, capital R is u. और कर्व आपके पास क्या है, S, S and the sine S. Can you find that triangle? That is a P, Q, derivative of the x naught, derivative of the y naught, which is my 0. Again, you can never say anything. फाइन, तो जब आप कुछ नहीं कह सकते फिर आपको नेक्स्ट स्टेप निकालना होगा, दैट मीन्स 1 over 1, 1 over 1 u की वैल्यू आपके पास क्या है, साइन ऑफ s डिवाइडेड बाय cos ऑफ s, एंड क्लियरली से दे आर इक्वल बट लास्ट वैल्यूज आर नॉट इक्वल। 1 इज इक्वल टू 10s हो गया ना, तो s की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, फाइन 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 10s, सिर्फ और सिर्फ पाई बाय 4 पे तो वैल्यू बराबर आएगी ना, लेकिन इसके अंदर कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं, तो अगर लास्ट केस नॉट इक्वल है तो दैट मींस इट हैज नो सॉल्यूशन। क्लियर? जब लैग्रेंज मेथड तब लगाना जब कभी भी आपके पास 0 बाय 0 फॉर्म बन जाए, इसमें तो 0 बाय 0 फॉर्म बनी नहीं ना, तो आपको लैग्रेंज लगाने की जरूरत ही नहीं है, यू कैन डायरेक्टली राइट एज द नो सॉल्यूशन। लुक एट द नेक्स्ट वन, आई कैन राइट दिस नंबर इज ux प्लस 0 into uy, फाइन, तो p कितना हो गया 1, q विल बी 0, r विल बी u। इनिशियल कर्व क्या हो जाएगी आपकी, x नॉट ऑफ t, x का कोऑर्डिनेट कितना है t, y नॉट ऑफ t कितना है 0, एंड z की जगह पे u लिख लेते हैं बिकॉज द फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ द u, इनिशियल कर्व ऑफ द u विल बी e raised to power t, fine, so that number is my u. Then you can find the determinant. First value is 1, q will be 0, derivative of the x naught, derivative of the y naught, and clearly say that number is my 0. Once it's a 0, we can't say anything about the solution. Then we can find this curve. Find this value is 1 over 1, 0 over 0 is r is u is my e raised to power t divided by the derivative, but you can see that 0 by 0 is my undefined. Once it is undefined, you can say that no conclusion can be obtained from the required expressions. So for that case, we need to find the Lagrange equations. Fine. From the second experiment, second fraction will implies you dy is 0, y is equal to c1. From the first and the third one, dx over 1, which is du over u. Now you can integrate them. X is equal to log of u plus c2. That implies x minus log of u is equal to c2. Now you can write the solution. Dependent variable u है आपके पास, u को आप लेफ्ट साइड पर रख लो, मीन्स phi से अवे, phi of y is the general solution of the partial differential. Substitute the value, कितना आ जाएगा t माइनस log of e raised to power t which is phi of 0. फाइन, तो सब सॉल्व कर लो इसको, कितना हो गया t log of e raised to power t is t phi of 0, so that means phi of 0 is my 0. फाइन, तो ऐसे कितने फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे फाई के, इन्फिनिटली मैनी, बिकॉज फाई अगर आपने फाई को मान लो फाई ऑफ ए को ले लिया, कोई भी फंक्शन ए स्क्वायर ले लो, ए क्यूब ले लो, फाइन, ए स्क्वायर माइनस ए ले लो, तो सब में सेटिस्फाइड हो रहा है ना ये फाई ऑफ 0 इज 0, दैट मीन्स हाउ मेनी फाई एग्जिस्ट, सो फाई हैज इन्फिनिटली मैनी, अगर फाई इन्फिनिटली मैनी है दैट मीन्स द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर, समझ में आ गया? क्लियर? अब आप वापिस आइए उन दो क्वेश्चन के ऊपर, फर्स्ट और सेकंड पे, और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पुट अप करिए। फाइन, और अगर आपके आंसर और आप सबने कमेंट अच्छा सा कर दिया, देन आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर फॉर यू ऑन द CSR net and GATE on the linear partial differential equation. Fine.
Till then, you can follow my playlist, partial differential equations, and watch about the linear and the non-linear partial differential equations, complete solutions. I hope you can like and share this video. Best of luck, students. Happy learning. Thanks very much.